Welcome to the Dr.ManuV.L.Kothari Chair and Division of Medical Humanities event. We'll be having two events today. I'd like to invite Dr. Raji from Neurosurgery to invite the first speaker. Very good afternoon, ladies and gentlemen, esteemed faculty in the audience, my dear friends. It gives me great pleasure in welcoming you all to what promises to be a wonderfully insightful and intriguing afternoon. Today, under the aegis of Dr.M.V.L.Kothari Chair and Division for Medical Humanities, we have a series of thought-provoking talks by eminent speakers. As India makes its foray into being a true global leader, do we need to stop and assess our position? Do we need course correction? What are the steps we need to take to channelize our strengths, our diversities into achieving our goals? Ladies and gentlemen, it is my honor in welcoming our esteemed faculty and the esteemed speakers of the day. Dr. Lopa Mehta Madam, Professor Atul Goyal Sir, HOD of Neurosurgery, Dr. Mrs. Divekar, Senior Anesthetist, Dr. Sulba Kunekar, Senior Urologist, Dr. Parker, ex-Dean of KM, Dr. Kamachi, PSM HOD, and our esteemed speakers of the day, Mr. Sankrant Sanu, Dr. Ram Varsi, and Mr. and Mrs. Tiwari. So without much ado, let me introduce and invite our first speaker of the day, Mr. Sankrant Sanu. He is an entrepreneur, a writer, a researcher. Having finished his education from IIT Kanpur and the University of Texas, where he did his BTech in Computer Sciences, having acquired 6 patents to his name, he found his calling in India and the issues plaguing India. He has authored a book which goes by the name The English Medium Myth, which highlights the fact that India has bought into the idea that it is progress that is possible only through English medium studies. His book, The English Medium Myth, debunks this idea with numerous studies showing better educational outcomes where students learn in their own mother tongue. This book contains specific proposals to make this a reality in a very practical way, so that India achieves its talent and in the globalized world. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, may I invite our first speaker, Mr. Sankrant Sanu. It's really wonderful to be here, and I'm really deeply honored to have a talk where Dr. Kothari's name is on the invitation card, and I have all the eminent professors and doctors sitting here. So my great honor to be here in this company. I've spoken at almost all of the IITs about this topic, so I'm actually a newbie speaking to doctors, so you'll have to be kind to me here. And I'd love to get inputs and feedbacks as we go around and how we can even refine this further when I'm talking to a medical audience. जो मुझे टॉपिक दिया गया था वो था importance of vernacular languages. लेकिन with respect I have edited a little bit because ये हम शब्द जब हिंदी में बोलूं किसी को आपत्ति नहीं, हिंदी समझ आएगी सबको, क्योंकि जब अपनी भाषा की बात कर रहे हैं तो अपनी भाषा में बात करने में थोड़ा उसका ज़्यादा आनंद है. So even when we use English, sometimes we don't understand this language in its depth, like we use the word vernacular. But vernacular, if you go to the root of it, actually means common, vulgar, coarse. Vernacular is something which doesn't have a literature, it doesn't have a literary tradition.
that becomes a vernacular language. So Indian languages should not be called vernacular. In slang we can say कोई गाली दे के अरे ऐसा that in the vernacular, that means कि जैसे अपशब्द बोला या कुछ vulgar use किया, that is the vernacular. But when we have such, if you take Marathi for instance, there is such rich literary history of Marathi, so it is inappropriate to call it vernacular. So I just use the word Indian languages. And in the context of Indian languages, the book in particular that I have is called Angrezi Madhyam Ka Bhramjal. And on the outside, it's important to say that I'm questioning the medium, use of English as a medium, not learning English as a language. Learning English as a language is excellent. Everybody should learn it. It's a skill to acquire, and there's absolutely nothing wrong with it. In fact, it's great to be learned. But when we have English as the only medium, without a choice, जब तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम कह रहे हैं कि अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आप केवल अंग्रेजी में कर सकते हो। मेडिकल की छोड़ दो, अगर आपने आज भारत में आयुर्वेद भी पढ़ना है तो आप केवल अंग्रेजी में पढ़ सकते हो, जबकि सारे उसके मूल ग्रंथ संस्कृत में हैं। लेकिन आपने पढ़ना है तो उसको आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम माध्यम अंग्रेजी बनाते हैं और केवल अंग्रेजी बनाते हैं, हम कह रहे हैं और कोई विकल्प नहीं है, तब हमारी समस्या खड़ी होती है। उसके बारे में आज बात करें। एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, मैं दिल्ली में एक स्टूडेंट फाउंडेशन है उसमें टॉक देना था। सो कोई व्यक्ति पीछे से आया, दिस नॉट डिस्क्रिप्ट लुकिंग पर्सन केम टू मी कि मैं भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ स्क्रिप्ट पर। मैंने कहा अच्छा, बहुत लोग आते हैं मिलने टॉक के बाद कि हाँ आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा मैं माय नेम इज डॉक्टर शांतनु घोष, मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हूँ और आई एम डूइंग रिसर्च व्हिच इज शोइंग दैट मदर टंग एक्चुअली creates efficient neural pathways for learning, because mother tongue is the first language that is acquired and the language acquisition starts in the womb. So when the mother is singing to the child, when the mother is talking to the child, language acquisition has already started. So early childhood and even prenatal language learning is happening. So उनकी research क्या कह रही है कि grammatical knowledge gained in the first language, which is the mother tongue, is mediated by distinct neural systems that are efficient because of its distribution throughout the cortex. अभी मुझे डॉक्टर गोयल भी बता रहे थे एक दो दिन पहले कि कभी ब्रेन इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, so you sometimes lose English, लेकिन आपकी जो मदर टंग होती है उसमें जो आपने सीखा होता है और जो आपकी वो भाषा होती है वो जाती नहीं है, क्योंकि it is distributed throughout the cortex. This is how that language is, and also for acquiring new knowledge, it becomes a much more efficient mechanism for acquiring new knowledge. So ये बहुत ये महत्वपूर्ण है जो इन्होंने बोला, क्योंकि अभी तक क्या था, there is empirical studies across the world. So from Turkey to Malaysia to Telangana, ये जो study है ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने स्टडी की आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, और उन्होंने क्या स्टडी की, they looked at children in 8th grade and they compared children studying in Telugu medium to children studying in English medium. और जो तेलुगु में माध्यम में पढ़ रहे थे बच्चे, वो अक्सर एक थोड़े निम्न परिवार से या गरीब परिवार से थे, जबकि जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे थे वो जैसे कहते हैं ज़्यादा अमीर परिवारों से थे। लेकिन despite the fact that the children from studying Telugu were from a lower socio-economic background, this fairly comprehensive study found that the children who were studying in Telugu medium scored considerably better, significantly better in science and math understanding than the children who were studying in English medium. So, and this is not just this was a study done in India, but this has been validated across the world. So, empirically there is no doubt about this. Empirically this has been repeatedly shown. लेकिन डॉक्टर घोष की रिसर्च से अब उसका theoretical basis भी हो गया है कि why is this happening? No, why is it that the children are learning better in the mother tongue? Because now we have a model to understand why this is happening, because the mother tongue is establishing more efficient neural pathways for learning. So,
ये तो ऑब्वियस ही बात है, बल्कि प्रोफेसर साहब मुझे बता रहे थे, प्रोफेसर गोयल, की डॉक्टर कोठारी भी एम्फसाइज करते थे कि जब पेशेंट से बात करो तो उनकी भाषा में बात करो, क्योंकि जब वो आपसे जो शेयर कर सकते हैं अपनी भाषा में, अगर आप उनसे अंग्रेजी में बात करोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल, वो अपने मन की बात पूरी शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप उनकी भाषा में बात करोगे तो आप उसको शेयर कर पाओगे. So in terms of communication, in terms of making them feel comfortable, and there is also the mother tongue is closer to our heart. जब दिल की बात करनी होती है तो फिर वो उसी जबान पे निकलती है. अगर आपने देखा होगा आज भी जब हम गाने गाते हैं प्रेम हो जाता है, तो जब गाना आता है तो फिर अपनी भाषा में आता है, वो दूसरा अंग्रेजी भाषा में नहीं आता. So in terms of closeness to the heart, it is conveying the information so that the patient can understand in terms of diagnosis and treatment and lifestyle. So this part is obvious. मैं कुछ इसमें खास या नई बात नहीं बता रहा, लेकिन जो दूसरी मजेदार बात है, ये आप स्टडी देखेंगे साइंटिफिक अमेरिकन की, ये बहुत ही अचंभे वाली स्टडी है. साइंटिफिक अमेरिकन ने ये स्टडी को हाईलाइट किया कि मोरालिटी चेंजेस व्हेन यू स्टार्ट टू थिंक एंड इंटरैक्ट इन अ फॉरेन लैंग्वेज. So they put certain subjects and the same question was posed in their second language, and that same moral dilemma was posed in their own language. So when the moral dilemma was posed in the foreign language or the second language, then the test subjects were very more inclined to make seemingly rational decisions, but that were more callous. Rational decisions, but that lacked a component of humanity. But when they were in their own language, they would make the opposite decision. So this is also very, very interesting. You can look this article up, Scientific American. तो हमारी डॉक्टर टू डॉक्टर इंटरेक्शन में भी अगर पेशेंट की बात कर रहे हैं और उसमें अगर अपनी भाषा आ जाती है, तो उसमें एक आत्मीयता हो जाती है, जिससे हमारी सोच अलग हो जाती है. और अगर केवल अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो उसमें नुआंस में फर्क पड़ जाता है किस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं. और एक और भी किस्सा है, मैं एक और डॉक्टर से कल बात कर रहा था, एक फ्रेंड से, तो उन्होंने कहा कि मेरे कोलीग मुझे आके कहे कि अगर आप हिंदी में बात करते हो तो, क्योंकि हम बहुत सारे अज्यूम करते हैं कि जो डॉक्टर हो गया उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, उसको अंग्रेजी समझ आएगी ही आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत सारे डॉक्टर भी आ गए, MBBS का कर लिया, MD कर लिया, कोर्स कर लिया है, लेकिन अभी भी अंग्रेजी में कठिनाई होती है. और ये कठिनाई अक्रॉस द फील्ड्स इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स इट्स देयर. तो मैं IIT रुड़की में टॉप दे रहा था, तो बाद में एक बच्चा भाग के मेरे पास आया, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था. उन्होंने कहा कि 2 साल में पहला लेक्चर है जो समझ आया. तो देखो, इतना होशियार बच्चा है, IIT में पहुंचा है, लेकिन फिर भी उसकी समस्या है भाषा की. और वही जैसे आप बहुत सारे किस्से हैं, एम्स में रिसेंटली किस्सा हुआ जिसमें बच्चे ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि हिंदी माध्यम से आया था. इतनी जल्दी जितनी आपकी मेडिकल पढ़ाई में कठिनाई होती है, इतने मोटी आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, टर्म्स याद करनी पड़ती हैं, इतनी सारी नई भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उसको समझना, याद करना, उसकी कठिनाई करनी. वो कह रहे हैं कि यही अगर मेरे को पुस्तक हिंदी में मिल जाती तो मैं बहुत जल्दी सीख लेता, लेकिन ये अंग्रेजी पढ़ने में ही मेरे को इतना समय लग जाता है कि मैं उसका काबू नहीं पा सकता. सो ये हमको सोचने की बात है कि प्रोफेसर गोयल पूरी दुनिया में गए हैं, आप में से भी बहुत लोग बहुत देशों में गए होंगे. मुझे भी सौभाग्य है, मैं लगभग 45 देशों में गया इस शोध के लिए. सो मैंने पाया कि जो भी विकसित देश है, all of the developed countries in the world, they are all using their own language. In fact, there is no country which has developed without bringing science and technology in the language of the common people. Every single country, if you go to Japan, PhD level work, all of that work is being done. All of the neurosurgeons are working and reading and studying in Japanese. If you go to China, they're doing it in Chinese. If you go to Russia, they're doing it in Russian. All of the countries that we consider advanced, they are all doing it in their own language. बल्कि मेरा अपना भी अनुभव हुआ, मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में था तो इजराइल में मेरी टीम का एक हिस्सा इजराइल में था.
तो अभी तक तो ईमेल में कम्युनिकेशन होती थी, एक ही व्यक्ति से कम्युनिकेशन होती थी, अंग्रेजी में होती थी। तो मैं कभी गया नहीं था इजराइल। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट हाइफा में गया पहली बार, तो मुझे बहुत झटका लगा, बल्कि उससे मैं इस रास्ते पे आया क्योंकि मैं भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा था। ये सब भ्रम जाल जिसको मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी का, वो मुझ में भी था। तो माइक्रोसॉफ्ट के हाइफा के ऑफिस में, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है, संपूर्ण काम, पूर्णतः सभी काम हिब्रू भाषा में होता है। उनकी सारी की सारी ईमेल्स हिब्रू भाषा में है, उनके सारे के सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हिब्रू भाषा में है, उनकी सब की सब टेक्निकल डिस्कशंस हिब्रू भाषा में है। और पूरे इजराइल की जनसंख्या दिल्ली से कम है। पूरी की पूरी इजराइल की जनसंख्या दिल्ली से कम है, फिर भी उनको कोई परेशानी नहीं हुई अपनी भाषा में काम करने में। और हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, we have such a huge population base, which is a resource base, as a Ministry of Human Resource Development। लेकिन अगर हमको रिसोर्स को डेवलप करना है तो हम केवल 5-10% जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उसका रिसोर्स डेवलप करेंगे तो फिर देश का विकास कभी नहीं हो सकता। उस परिणाम पे पहुंचा, उस परिणाम पे अपने अनुभव से पहुंचा, क्योंकि मेरी भी मान्यता यही थी कि अंग्रेजी से ही भारत का विकास होगा। तो असल में अगर आप डेटा को देखिए, जो भी बोलता है कि अंग्रेजी इंग्लिश एडवांटेज की बात होती है भारत के संदर्भ में, लेकिन वो उसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। मैं पूछता हूँ मेरे को सबूत दीजिए इंग्लिश एडवांटेज का। अगर आपका इतना इंग्लिश एडवांटेज है तो यहाँ पे तो वर्ल्ड लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज होनी चाहिए। कितने फेसबुक, कितने गूगल, कितने बाइडू, कितने टिकटॉक भी बनाए हैं आपने जो दुनिया के ब्रांड बने हैं, एक भी नहीं है। कितने आपके ब्रांड्स बने हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांड्स। ठीक है, आपका कोई व्यक्ति गूगल में जाकर काम कर रहा है लेकिन ब्रांड उनका है, काम आप कर रहे हो। तो वो जैसे हम कुली वाला काम कर रहे हैं कि किसी और का सामान ढो रहे हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सामान हमारा नहीं है, सामान किसी और का ही ढो रहे हैं। So we have not managed to succeeded in creating global brands. China today has $100 billion plus software technology companies. All of their work is being done in Chinese, right? सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सारे मैनुअल्स, सारा का सारा काम। बल्कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ट्वीट किया, मशीन लर्निंग के प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा मैंने एक टेक्निकल ब्लॉग पे आर्टिकल लिखा और 24 घंटे में चाइनीज ब्लॉग स्फीयर में वो चीनी भाषा में मिल गया। इतनी उनकी कमिटमेंट है टू ट्रांसलेटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड नाउ चाइना हैज ऑलरेडी एक्सीडेड द यूएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटेंट्स। ऑल ऑफ देम आर बीइंग फाइल्ड इन चाइनीज लैंग्वेज। सो लोग कह रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया अंग्रेजी का प्रयोग कर रही है, लेकिन अगर आप आंकड़ा देखोगे तो 90 से अधिक प्रतिशत दुनिया को अंग्रेजी नहीं आती। और इस 90 से अधिक प्रतिशत में वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर्स हैं, MBA हैं, सबके सब लोग हैं जो उनको अंग्रेजी नहीं आती। केवल 5% है जिनकी मूल भाषा अंग्रेजी है और लगभग 4% और है जिनको अंग्रेजी दूसरी या तृतीय भाषा की तरह आती है। तो ये कहाँ से, ये लेफ्ट में कौन सा है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जो मेडिकल साइंस में बहुत आगे है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो सारा उनका काम जापानी भाषा में होता है। उसके सामने आपको कौन सी भाषा है वो जानते हैं? तो राइट साइड पे टॉप पे हिब्रू भाषा है। ये टेक्नियन यूनिवर्सिटी का सिंबल है। टेक्नियन यूनिवर्सिटी IIT से कहीं आगे रैंक की, टेक्नियन यूनिवर्सिटी IIT से कहीं आगे। लेकिन आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, वो कहेंगे हमारा माध्यम हिब्रू है, हिब्रू यहाँ कंपल्सरी है। अगर आपको आगे पढ़ना है तो पहले आपको हिब्रू सीखनी पड़ेगी। हिब्रू के रिमेडियल कोर्सेज हैं, वो सीखिए, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी सीखेंगे। और जैसे मैं कह रहा हूँ IITs का तो टॉप 100 में भी यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत आगे है IIT से टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सिमिलरली अगर उसके नीचे देखेंगे तो पेरिस का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, सारी पढ़ाई अपनी फ्रेंच भाषा में होती है। जर्मनी का रोबोटिक्स प्रोग्राम है इंस्टीट्यूट है, वो सारी की सारी पढ़ाई अपनी जर्मन भाषा में, सारा काम जर्मन भाषा में करते हैं। मैं जापान में पहुंचा, लोग जब अलग अलग जगह जाते हैं तो इमारतें देखते हैं और ऐसी चीजें देखते हैं। मैं वहाँ पे लाइब्रेरीज में और पुस्तकालय में और बुक स्टोर्स में घुस जाता हूँ देखने के लिए कि किस तरह से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ। तो आप देखेंगे जापान का समाज अमेरिका के समाज से तकनीक में कहीं आगे है। इन कॉमन यूसेज दे आर मच मोर टेक्निकली एडवांस्ड देन इवन द US, बिकॉज दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन अ मच डीपर वे। जैसे यहाँ पे भी आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो छोटा सा रोबोट है जो चेकआउट के लिए है बुक्स की, तो वो आपसे बातचीत भी कर सकता है और आप उसको चेकआउट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन सारा का सारा जब आप उसमें देखते हो पुस्तकें,
तो वो सब की सब तकनीकी की, मेरा ये फील्ड है कंप्यूटर साइंस का, तो मैं कंप्यूटर साइंस पुस्तकें देख रहा था। तो TCP/IP नेटवर्किंग वो सीखते हैं, तो सारी की सारी पुस्तक वो जापानी भाषा में है। राइट से राइट के ऊपर ये C++ प्रोग्रामिंग की पुस्तक है। तो मेरे को एक्चुअली जो मैंने कहा C++ प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, तो लोग कहते हैं भाई उसमें आपको अंग्रेजी चाहिए होगी, लेकिन थोड़े से कीवर्ड्स हैं इसमें, जैसे सी आउट, इंट वगैरह देखेंगे, थोड़े से कीवर्ड्स हैं जो अंग्रेजी के हैं, लेकिन समझना वो पूरी की पूरी अपनी भाषा में करते हैं, उसके बाद वो प्रोग्राम लिखते हैं जो भी करते हैं। तो कोई उनको समस्या नहीं है अपनी भाषा में समझने में। आपको बहुत आश्चर्य होगा, जब अरबी विज्ञान बहुत आगे था, when Arab science was at its peak, then the Arabs would कहाँ से आ रहा था, lot of the manuscripts were coming from India. For instance, a lot of the mathematics went from India to the Arabs. All the decimal system, zero, in fact, a lot of calculus, trigonometry, all of this was transmitted from India to the Arabs. Similarly, from Chinese, they got a lot of chemistry and other things. They used to pay the translator the weight of the manuscript in gold to translate that into Arabic. This is how much importance they place to translation. क्योंकि जब तक अपनी भाषा में कुछ विषय नहीं आएगा तब तक हमारी समझ नहीं पड़ेगी, तो उसका इतना महत्व था कि उसको अनुवाद किया जाए ताकि सब लोग समझ पाए। हमारे सरकार क्या कहती है, 10 रुपए पेज में कर लीजिए इसको ट्रांसलेट, तो उसमें फिर कौन डॉक्टर उसमें अपना समय लगाएगा ट्रांसलेट करने में, कौन डॉक्टर लिखेगा। तो हमको भी एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले अपनी अपनी भाषा में वो तकनीकी पुस्तकें लिख पाए। और इसका परिणाम क्या है, लोग मुझे कहते हैं जी आजकल लेकिन जो अधिकतर तकनीकी पेपर है वो अंग्रेजी में छप रहे हैं। तो मैंने कहा सही भी बात है, 50-60% पेपर अंग्रेजी में छपते हैं, लेकिन जो भी देश आगे है वो अपना माध्यम नहीं बदल रहा। यानी कि आपको यू कैन हैव अ रीडिंग लेवल एबिलिटी इन इंग्लिश, यू कैन इवन हैव अ राइटिंग एबिलिटी इन इंग्लिश, बट द लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट चेंज टू इंग्लिश। दैट इज व्हाट दीस कंट्रीज आर डूइंग। सो जापानी लोग प्राइमरी में, सेकेंडरी में, कॉलेज में, PhD लेवल तक अपनी भाषा में सब विषय को समझ रहे हैं। उसके बाद अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, पढ़ने के लिए पेपर या लिखने के लिए भी पेपर उतनी सीखने पर ही आते हैं, उतनी सीख सकते हैं, लेकिन उसको अपना माध्यम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे परेशान नहीं किया। तो आप अगर जाके गूगल पे देखेंगे पिछले 10 साल में जापान में 10 नोबेल प्राइज विनर्स आपको विज्ञान में मिलेंगे, सबके सब जापानी में पढ़ के जापानी में आगे काम करके। बल्कि किसी ने मुझे डेटा दिया था, मैंने इसको खुद कंफर्म भी किया कि विश्व में एक भी नोबेल प्राइज विनर नहीं हुआ जिसने प्राइमरी भाषा अपनी मातृभाषा में नहीं की हो, प्राइमरी की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में नहीं की हो, ऐसा कोई भी नोबेल प्राइज विनर नहीं निकल गया है। यानी कि जब हम अंग्रेजी में डाल रहे हो बच्चों को और उनको भर रहे हैं उसमें, तो हर प्रकार का डेटा ये बता रहा है, एम्पेरिकल डेटा ये बता रहा है। आपने तेलंगाना की स्टडी सुनी तेलुगु भाषा की, आपने डॉक्टर घोष को सुना कि वो न्यूरल पाथवेज की बात कर रहे हैं। जब हम अंग्रेजी में बच्चे को लाद रहे हैं उसके ऊपर, तो हम उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को कम कर रहे हैं। We are actually impeding the cognitive development of the child by forcing the child into a language which is not their mother tongue for learning and for understanding. So this is one fact that if there is one takeaway, this is one takeaway for us. लेकिन समस्या क्या हो रही है, हमको बताया जा रहा है कि अंग्रेजी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग अंग्रेजी चाह रहे हैं, सरकारें आज अंग्रेजी बढ़ रही है। अभी आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया कि सारे के सारे प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स अंग्रेजी माध्यम से हो जाएंगे। मैंने उनसे किसी ने उसके लिए मुझे डेटा नहीं दिया कि ये आपने किस एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पे ये चेंज किया, आपने कोई कंपैरेटिव स्टडी रन की कि तेलुगु मीडियम में कितने पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी मीडियम में कितने पढ़ रहे हैं, उनका क्या परिणाम है। कोई स्टडी के बेसिस पे नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि लोग चाह रहे हैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। क्यों चाह रहे हैं? Systematic government policies over the last 70 years have created the situation. कहते हैं कि भारत सरकार हिंदी को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अगर आप वास्तविकता देखिए, भारत सरकार कितने मेडिकल कॉलेज चला रही है हिंदी में, भारत सरकार कितने IIT चला रही है जो हिंदी में है, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में आपको हिंदी की इजाजत दे रही है, भारत सरकार NDA के एंट्रेंस के अंदर एक बार आप पास हो जाओ तो इंटरव्यू देने के लिए आपको केवल अंग्रेजी में देनी है। तो हर पहलू से
अभी जीएसटी लागू किया भारत सरकार ने, वो केवल अंग्रेजी में जीएसटी दे सकते हो, यानी कि सरकार को टैक्स लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी भाषा में उत्तरदायी होने में उनको बहुत परेशानी है। अगर कोई तमिल में टैक्स पेयर है तो वो भारत सरकार को, केंद्र सरकार को तमिल में अपना सवाल नहीं लिख सकता और उसको तमिल में जवाब नहीं मिलेगा, उसको केवल अंग्रेजी में ही सवाल पूछना पड़ेगा, अंग्रेजी में जवाब देना पड़ेगा। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है कि हम इतने हजार लाखों बच्चों को अब अंग्रेजी माध्यम में गांव के बच्चों को डाल रहे हैं। उसमें क्या होता है, ये सोचो अगर कल मैं आपको बोल दूं आपके सब बच्चे कल से चीनी भाषा में पढ़ेंगे, चीनी भाषा विषय की तरह नहीं पढ़ेंगे, चीनी भाषा के माध्यम में पढ़ेंगे, तो आपका क्या परिणाम होगा? आपके घर में चीनी नहीं बोली जाती, आप समझा नहीं सकते कि बच्चे टीचर ने क्या पढ़ाया है, लेकिन बोलेंगे कि सबके सब बच्चे अब कल से चीनी भाषा में पढ़ेंगे। तो वो ही हम गांव के बच्चे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गांव का बच्चा जाता है उसको अंग्रेजी नहीं आती, कोई परिवेश नहीं है, घर पे अंग्रेजी बोली नहीं जाती, और जो टीचर पढ़ाने वाला है उसको भी 2-4 शब्द ही आते हैं, लेकिन हमने बोल दिया कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे। तो उस बच्चे की वो तो कभी गणित भी नहीं समझ सकता, वो विज्ञान नहीं समझ सकता, कोई विषय नहीं समझ सकता, लेकिन अंग्रेजी माध्यम का लेवल लग गया। मैंने एक कंपनी चलाई है प्रकाशन घर, उसमें मैं बहुत इंटरव्यू लेता हूँ इन बच्चों की, और जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े बच्चे हैं, जो ये रूरल बैकग्राउंड से निकल रहे हैं, वो सबसे नालायक है, वो किसी काम के नहीं है, मैं उनको किसी काम दे ही नहीं सकता। तो हम MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जगह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रक्शन इसका नाम देना चाहिए, क्योंकि इतनी स्केल पे ह्यूमन रिसोर्स का डिस्ट्रक्शन और कोई देश नहीं कर रहा हो जितना हम अंग्रेजी लाद के कर रहे हैं। और आप देखोगे हर संस्थान में, यूपीएससी में, सुप्रीम कोर्ट में, IITs में, एम्स में, NDA एंट्रेंस में, सब संस्थानों में भारत सरकार अंग्रेजी थोप रही है, और साथ कह रही है डॉक्टरों की बड़ी शॉर्टेज है, आप मराठी में डॉक्टर क्यों नहीं बनने दे रहे, शॉर्टेज कम हो जाएगी, आप तमिल में क्यों नहीं बनने दे रहे, बंगाली में क्यों नहीं बनने दे रहे, हिंदी में क्यों नहीं बनने दे रहे। अगर लोग कहते हैं कि कैसे होगा, टेक्निकल टर्म्स कैसे समझ आएंगे, अगर वो लोग जापानी में समझ सकते हैं जिसकी आप लिपि भी देखो, उसके 2000 कैरेक्टर अल्फाबेट, उसमें आप पूरी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी कर सकते हो, चाइनीज में कर सकते हो, तो हमारी भाषा तो इतनी वैज्ञानिक है। आपको मैं करूँ कोई दंत चिकित्सक है, आप कहोगे यार ये तो बड़ी पुरानी सी चीज है, लेकिन दंत से शब्द डेंटल हो गया, एक ही शब्द है वो, दंत और डेंटल एक ही शब्द है, तो उसी दंत शब्द से डेंटल बनता है, तो वो मॉडर्न और एडवांस हो जाता है। वही शब्द अगर हम अपनी भाषा में प्रयोग होता है तो वो पुरातन हो जाता है, पिछड़ा हो जाता है। लेकिन हमारी तो संस्कृत की जो शब्दावली है उसमें इतनी गहरी है वो, कि सबके सब जो लैटिन मेडिकल टेक्नोलॉजी मोस्टली लैटिन से आई है, और लैटिन और संस्कृत बहुत मिलती जुलती है, तो अपनी शब्दावली उसमें बनाने हमारे लिए तो सबसे आसान है, रूस से आसान है, चीन से आसान है, जापान से आसान है, क्योंकि हमारी भाषाएं इतनी अधिक वैज्ञानिक है। तो ये हमको उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और मेरा यहाँ पे आने का, बोलने का यही मकसद है कि ये जो सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप डॉक्टर्स हैं, वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ सोसाइटी, कि ऐसे लोगों, इसलिए मैं IIT में भी जाकर प्रोफेसर से, स्टूडेंट से बात करता हूँ कि यहाँ के हमारा अगर भ्रम दूर होगा तो हम बाकी समाज का भ्रम भी दूर करेंगे, लेकिन अगर हम भ्रमित रहेंगे तो फिर हम बाकी समाज को मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। तो फाइनल स्लाइड ये है कि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जो आप उदाहरण दे रहे हो उन सब देशों की एक भाषा है, भारत में बहुत सारी भाषाएं है, भारत में कैसे होगा? पहली बात तो ये गलत है। जैसे चीन में भी 300 भाषाएं हैं, उन्होंने अपनी मानदेय भाषा लगाई है, लेकिन चीन में भी 300 अलग अलग भाषाएं हैं, बहुत डायलेक्ट्स हैं। दूसरी बात हमको ये सोचनी है, जो भारत है उसकी जनसंख्या हर महाद्वीप से ज्यादा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is larger than any other continent. The population of India is greater than Europe. Population of India is greater than North America. It is greater than South America. It is greater than all of Africa. This is how large India is. So India is not only a country, it is also a continent. So we have to look at the solutions for India on a continental scale. हमारा देश हमेशा बहुभाषीय देश रहा है, कभी भी एक भाषा थोपने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे हिंदी की वकालत करने नहीं आया हूँ, मैं कह रहा हूँ हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में उच्च से उच्च शिक्षा पाने की सुविधा होनी चाहिए, विकल्प होना चाहिए। ये भी नहीं कह रहा मैं अंग्रेजी माध्यम हटा दो, मैं कह रहा हूँ बच्चे को आप विकल्प दो, ऑप्शन दो, कि अगर कोई मराठी में बच्चा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके,
अगर हिंदी में बच्चा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके, तमिल में बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सके, जिसने इंग्लिश में पढ़ना है उसको इंग्लिश में पढ़ने दो, लेकिन कम से कम आपको अगर ऑप्शन होगी तो मैं एकदम ठोक के कह सकता हूँ, अगर कल हम मेडिकल की पढ़ाई मराठी में हिंदी में शुरू कर देंगे, 10-15 साल में जो वहां से विद्यार्थी निकलेंगे और डॉक्टर निकलेंगे, वो अंग्रेजी माध्यम के डॉक्टर को भारत में पीछे छोड़ देंगे, जो उनका ज्ञान इतना होगा कि वो पीछे छोड़ देंगे। IIT में भी जो ऐसे बच्चे निकलेंगे वो पीछे छोड़ देंगे और वो ऐसे नए आविष्कार करेंगे, नए सोच करेंगे। अभी मैं प्रोफेसर गोयल से बात कर रहा था, इतना अद्भुत इन्होंने काम किया, उनको सुन के मैं मुग्ध हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये आविष्कार वहां से क्यों नहीं हुआ, वेस्ट में क्यों नहीं हुआ, जो जिस टाइप की नई वो कर रहे हैं। एक बहुत कोर प्रिंसिपल डॉक्टर साहब यूज कर रहे हैं, विच इज दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल बैलेंस, कि द बॉडी हैज अ नेचुरल इंटेलिजेंस एंड everything that is happening that we are calling a disease is some kind of adaptive response to a situation that has been created. तो उसका adaptive response वो disease में manifest हो रहा है। So this principle of balance is a core principle of Eastern thought. वो ये न्याय का सिंबल जो आता है चाइनीज थॉट के अंदर, और हमारे उसमें भी सोच में ये आइडिया है ऑफ थिंग्स बीइंग इन बैलेंस। आयुर्वेद का भी यही प्रिंसिपल है कि डिसबैलेंस से डिजीज होती है, डिसबैलेंस इज डिजीज। तो डॉक्टर साहब ने उसको पढ़ के नहीं किया, डॉक्टर साहब ने अपने एक्सपीरियंस से उस तथ्य पर पहुंचे, लेकिन जो वहां की सोच है उसके अंदर देयर इज अ बाइनरी थिंकिंग दैट देयर इज अ डिजीज, इट्स एन एनिमी, इट हैज टू बी किल्ड, इट हैज टू बी एलिमिनेटेड। सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल। सो मेरा कहने का ये मतलब है, जब अपनी भाषा में सोचेंगे और अपनी तरह से सोचेंगे, हम उस प्रकार के आविष्कार कर सकते हैं जो कि हम केवल वहां से कॉपी करने में नहीं कर पाएंगे। और हमारे देश से इतने आविष्कार हुए मेडिकल साइंस में, तो हम बहुत आगे थे। अगर आप सुश्रुत की सर्जरी को देखते हो, और ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी में तो बहुत एक्सेप्टेड है, लेकिन बहुत और भी सर्जिकल टेक्निक्स है। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे, अभी तक जो हमको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो लगभग पूरी की पूरी यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री है। हम जब भी पढ़ते हैं मैथ क्योंकि और कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट है, तो हम फिबोनाची नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन फिबोनाची ने जब पुस्तक लिखी, उसने कहा कि मैं इंडिया की मैथमेटिक्स की पुस्तक लिख रहा हूं, दैट इज द टाइटल ऑफ फिबोनाचीज बुक। जब अलजेब्रा वाली पुस्तक अरब्स ने लिखी, उन्होंने कहा ये अल हिंद की पुस्तक है, अल हिंद की गणित की पुस्तक मैं लिख रहा हूं। So all of these people are actually saying that we got all this knowledge from India, but when we learn it, we say इन्होंने किया। Same thing has happened in medical science also. So a lot of the discoveries that were made with us, the proper attribution has not happened, proper credit has not happened. But even it doesn't even matter. It's not a question of credit. It's really a question of saying there is a unique perspective that our civilization has. That when we start to work in our language, that perspective will become strengthened, and we will be able to complement the approaches that are coming from outside, which are also valuable, and it's worth learning what they have discovered. तो ये यूरोपियन संघ का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोग कहते हैं हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं। यूरोपियन संघ में 24 भाषाएं हैं, लेकिन एक भारत में तो केवल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। यूरोपियन संघ में 24 भाषाएं हैं, लेकिन आप यूरोपियन संघ को 24 में से 24 भाषाओं में ईमेल कर सकते हैं और आपको उसी भाषा में उत्तर मिलेगा। आप यूरोपियन संघ से पत्र व्यवहार 24 में से 24 भाषाओं में कर सकते हो। आप यूरोपियन संघ को टेलीफोन 24 में से 24 भाषाओं में कर सकते हो। आप उसी कॉल सेंटर पर रीडायरेक्ट हो गए और आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यानी कि ये 24 की 24 भाषाएं का एक समान मानी जाती हैं और 24 की 24 भाषाएं वहां पर लागू होती हैं। तो कोई भारत सरकार को भी आज, बल्कि this problem is easier, since my subject is computer science, I can speak about it. This problem is easier than it was in 1947, because with computing, with email systems, with automatic translation, lot of these problems can be solved that we were not able to solve when we became independent. So there is no reason why India cannot be a completely multilingual state, which is how it always has been. And then we start to incorporate this multilingualism, and then we also really let the 90% of people we are leaving behind, because we are saying अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप निकम्मे में हो, आप गवार हो, आप किसी काम के नहीं हो, आगे पढ़ नहीं सकते, ये जो हमने धारणा बना दी है, उसको अगर हम छोड़ेंगे तो फिर से हम एक नॉलेज सिविलाइजेशन की ओर और एक डेवलप देश की ओर जा पाएंगे। बस इतना ही है। और एक आह्वान है कि गरुड़ प्रकाशन मैंने शुरू किया, क्योंकि
जब मैं बहुत जगह बोल रहा था तो लोगों ने कहा जी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन समस्या ये पुस्तकें कहाँ हैं, मेडिकल की पुस्तकें कहाँ हैं, हिंदी में मराठी में, इंजीनियरिंग की पुस्तकें कहाँ हैं। तो मैंने कहा सरकार जब कहेगी हम तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयत्न करें जितना हमारे से बनता है। तो हम ये प्रकाशक घर शुरू किया है गरुड़ नाम से, और एक डॉक्टर ऑलरेडी डायसेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, हिंदी में डायसेक्टर्स लाने के लिए, और भी पुस्तकें लाएंगे। तो आप में से भी यहाँ पे भी जो भी लोग लिखना चाहें हिंदी में मराठी में अपनी भाषा में पुस्तकें लिखना चाहें, आप अवश्य आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसको प्रकाशित करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे ताकि पुस्तकें हम ला पाए। और ये मेरी 2 पुस्तकें हैं, आज ये मराठी पुस्तक का बल्कि विमोचन करेंगे सर। और ये मेरा कॉन्टैक्ट है, आपको पुस्तकें ऑर्डर करनी है तो ये व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, इससे आपको ये पुस्तकें मिल सकती है। अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, द इंग्लिश मीडियम मिथ इज द थैंक यू सो मच। It was indeed a riveting talk by Mr. Sankrant sir. While I was reading up his bio on the internet, I came across his own blog where he explains the meaning of the word Sankrant. And as it says, Krant comes from the main word Kranti, revolution, and the prefix Sa apparently adds the benevolence to it, the change that needs to come from within and not by turmoil and unrest. Indeed, this talk reflects this word. May I invite Dr. Gopamrita Madam and Professor Atul Goel sir, please come and felicitate us. Sanu sir. We have with us Dr. Narkar sir also, the active dean of DEM Hospital. May we welcome him also. My mentor from the Humanities cell of DEM. I just want to introduce a little bit more Sankrant. You see his revolutionary mind, his love for India, love for Indian culture, love for Indian Sanskriti that we call, and love for development of Indianness in all of us that brought him where he is. He left all that glitter and gold of Microsoft at a very early age and then migrated into forays of India. He is trying to develop student-based, learning-based and various other things. This is completely amazing. He's not a regular character, he's an unbelievable character, and we are very proud to have Sankrant with us. Now I invite Ram, please Ram come, and he will give some solid words about language and about various things in few sentences and a few words. Very all the members of faculty here. First of all, I would like to pay my tributes, my Shraddhanjali to a great soul, Kothari, a professor, a teacher, a pious soul, जिनके लिए कबीर ने कहा था हम बातों की बातों में बातें कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ाई है कि जब तुम भय जग हंसा तुम रोए. I don't know how many pediatricians here, but all doctors, जब तुम भय जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चढ़ो तुम हंसो जग रोए. यहाँ जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो रोते हुए आता है. डॉक्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं, डॉक्टर साहब आप जानते हैं इस बात को, कि अगर बच्चा नहीं रोया तो कहा साइनोसिस एंड ब्लू बेबी है, कहीं ना कहीं कोई हार्ट में होल होता है.
लेकिन वो बच्चा ईश्वर से शिकायत करता है कि मैं बड़ा अच्छा था वहां पर, कहाँ पापों के जंजाल में मुझे भेज दिया। लेकिन जब तुम यहाँ से चलो तो इस तरह चलो कि तुम हंसो जग रोए। वो मनु कोठारी थे जो ऐसी बात कर गए कि आज भी हम उनको याद करते हैं। आई हैव नोन मनु कोठारी। अभी सामने ने ये बात की कि KM इज एन इंस्टीट्यूट which has produced authorities. I've been saying right from Dr. Sen to Dr. Nair to Dr. Kothari to Dr. Date. Date was of the opinion कि जब भी कोई patient, Anil Tendulkar will be a privy to talk about this, कि whenever you have a patient and you know his language, आप उसी की language में उससे बात कीजिए। Madam, you know all this. अंग्रेजी की बात हुई, सानू जी ने बात की। दरअसल दोस्तों ऐसा है कि आप जितनी ज्यादा मुंह बना के अंग्रेजी बोली जाए, wouldn't suffice to express the intensity of Jones' choice, that is the obstacle. अरे आप बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं। This has been the culture. देखिए बहुत जमाने पहले सानू जी आप यकीन करेंगे कि what is the basic criterion, the crux, the bone of contention, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। इसमें एक बड़ी प्यारी बात इकबाल ने लिखी है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अलजेब्रा कहा इन्होंने, ट्रिग्नोमेट्री कही, साइंस का। अब ये लूटम बैकवर्ड सिंड्रोम का भी हिंदी लाएंगे, मेरे को याद हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये लूटम बैकवर्ड क्राइनोटोमी के लिए भी लाएंगे, कहीं ना कहीं कोई हिंदी शब्द इसमें लाएंगे, और सोडियम पेट्रोथाल एमिटाल के लिए भी लाएंगे, ये हिंदी लाएंगे, डॉक्टर साहब लाएंगे, मुझे लगता है। आई एम अवेटिंग दैट डे। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यही बात है हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। दरअसल अंग्रेजी एक बड़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। आई एम यूजिंग द वर्ड इम्पोर्टेंट। आई टेल यू, इट्स नॉट विथ एक्सप्रेशन। I've been you're recording me, so I'm going on record to say this. क्या आप एक्सप्रेस क्या करेंगे इसमें? आप आइए, आप तशरीफ लाइए, तू आजा, तुम आजा, यहाँ नहीं होता है। Everything is you. God is also you, कुत्ता is also you, बीवी is also you, darling is also you. किससे संबोधित कर रहे हैं? You never know. ठीक है? आप साली सिस्टर इन लॉ, काकी इज आंटी, मासी इज आंटी, बुआ इज आंटी, अंकल इज अंकल, मैटरनल पैटर्नल, लेकिन उसके अगर आप जाएं ब्रदर इन लॉ की बीवी, वो भी साथ सिस्टर इन लॉ है। एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन जितना टेढ़ी जबान बना के बोलते हैं आप, जितना मुंह बना के बोलते हैं, well now this is something great which I have been trying to tell you. Oh, you are a very learned man, just landed from Seattle, working with Microsoft. Here's Mr. Sanu there. Oh, I am a very highly qualified man. It doesn't go like that. It doesn't go like that. But factually and actually speaking, when you talk about languages, yes, we are having a rich culture. We are having a rich culture of languages. कबीर बहुत जमाने पहले बोल गए हैं कि बोली तो अनमोल है प्यारे जो कोई जाने बोल। बोली तो अनमोल है प्यारे जो कोई जाने बोल, पहले मुख तराजू तोल के फिर जीभ को बाहर खोल। पहले वजन कर लीजिए अपने शब्दों को वजन कर लीजिए, क्योंकि शब्द इंसान की जिंदगी से बड़ा खिलवाड़ कर जाते हैं, जिसका लोगों को अंदाजा नहीं होता। बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। बात की बात से बात पर बात करते करते मैं कितनी बातें आपको बताऊं, कौन सी बात वो बात बन जाए जो आपकी बात बना दे, कोई बात वो हो जाए जो आपकी बात में से बात निकाल कर बात को खराब कर दे, तो बात में वो बात की मजा नहीं आएगी जो बात सुनने के लिए आप बात में आए। डॉक्टर गोयल की बात खराब हो जाएगी, मेरी बात भी नहीं बनेगी, और बातों की बात में सानू ने जो बात कही थी वो बात भी खराब करके क्या बात बना के चला जाऊंगा मैं, वो बात बिगड़ जाएगी तो बात में अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बात सुन लीजिए आप, जो बात सुनने के लिए आए हैं वो बातें मैं कर रहा हूं आपसे, जो बात मुझसे करवाना चाहते हैं आप। कितनी बातें मैं आपको बताऊं, कितनी बातें आप सुनेंगे, और कौन सी बात आपको अच्छी लग जाएगी वो बात भी करूंगा, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी वो बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात से बात बनेगी, बात से बात की बात बनेगी, बात नहीं तो बात नहीं बनेगी। और क्या बात बनेगी जो बात नहीं बनेगी? और क्या कहूं आपसे, बहुत अच्छी बातें बताई सानू जी ने। मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड है डॉक्टर गोयल। मेरी जिंदगी की तमन्ना रही कि मैं न्यूरो सर्जन बनता, लेकिन क्या करें साहब, है और भी कम जमाने में मोहब्बत के सिवा मैं न्यूरो सर्जन नहीं बन सका। वो अफसोस रहेगा
कोठारी जी भी मुझसे कहते थे कि तू शू कर से मने भी कोई खबर नहीं, पर तू जे कर से सारू कर से मने खबर जरूर से. So I remember those days, and I want me to conclude by saying, if you have questions in this regards to, please, because I've been asked by Professor Dr. Goel to moderate these sessions. अगर आपके पास इस विषय के संदर्भ में कोई क्वेश्चंस हैं जो आप इंटरपोज करना चाहते हैं हमारे रेवरेंड स्पीकर को, तो भैया थोड़ा माइक्रोफोन करा दीजिए प्लीज, थोड़ा माइक्रोफोन दे दीजिए ऑडियंस में. अगर कोई सवाल करना चाहें भाषा, हाँ जी बेटा, या टेल मी प्लीज. यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ माय डियर चाइल्ड बिफोर यू इंटरपोज द क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So we know whether you are a neuro man or a cardio man or an endocrinology man or a... Tell me, yeah. That department gets an award. Most intelligent intellectual. KG Nair bolte the इस तरह. Students who question should always say that they belong to that department. So that department is very intelligent. Yeah, tell me, yeah, please. माझं नाव यशराज आहे, यशराज पाटील. Yeah. आणि मी MBBS थर्ड इयरचा स्टुडंट. Very good. माझा प्रश्न असा आहे की the science which we learn now, like the chemistry was founded by Mendel, and he wrote in Russian. Then many European cultures like Newton wrote in Latin. So how, like our culture also wrote some things, but they were more related to mind. They were more of a mind-body connection and that way. But how do they learn those things which they develop through their language, through development of their language? And we need to know, otherwise we can't live in this. So, just to repeat, are you asking how do we learn what the ancient Indians wrote? Is that the question? No. How do we learn Newton's laws in vernacular language? Like in Marathi, I want to learn Newton's law. Then there must be some way to convert that into... Yeah, so the thing is that Newton's law is taught in so many languages. You can learn Newton's law in Japanese, you can learn it in Chinese, you can learn it in Hebrew. So there's no problem in learning it in Indian languages also. See, this basically... Yeah. Lopa madam is a kavaya to the multitude. You understand? A kavaya to the multitude. She's a kavaya to the multitude. She learned it in Gujarati. I have a friend of mine, in fact he's my junior. I would not like to name him. He is a product of KM. He has done his DM in cardiology. And he has done, I don't know, many of you all must be his contemporaries here. He has done his DM in cardiology. He belonged to a Gujarati lower middle class family. And he is doing very well as a cardiologist. किती सांगू मी सांगू तुम्हाला मला आनंदी आनंद झाला असा असता कामा नये राजा. What you have to do is that's what he precisely said, that the government should take that initiative to change, translate. देखो आपको बताता हूँ, एक होता है translation, okay? एक होता है we are talking of language. एक होता है transliteration, okay? एक होता है transliteration, एक होता है interpretation, एक होता है interpolation. आपको बताता हूँ, समझ रहे हैं आप? Translation, transliteration, interpretation and interpolation. Do you know the difference? Anybody here, please, friends? यार KM इतना अच्छा कॉलेज है कि जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स हैं बॉम्बे के आज भी, I vouch कि they are all GSIs. Or you name anybody, cardiac surgery, orthopedic, endocrinology, neonatology, pediatrics, immunology, geriatrics, social preventive medicine, histopathology, everybody. But why today all the silence? Surgery, yes. Ophthalmology, but why today so silence? Anesthesiology, yes. Why so silent? Tell me, anybody here who can tell me the difference between interpretation and interpolation? चलिए, मैं बताऊं? Yes. नहीं, इंटरप्रिटेशन तो आप टेक्स्ट का मतलब समझ रहे हो, इंटरप्रिटेशन में उसमें डाल रहे हो. एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है ट्रांसलिटरेशन, ओके? एक होता है इंटरप्रिटेशन, एक होता है इंटरपोलेशन. आप गूगल कीजिए, वर्ड आपको मिलेगा. मैं अपनी से नहीं बता रहा हूं आपको, ओके?
search those words, you'll find out. See, when you say translation is another form of interpretation. Interpretation is what he said, आप अपने तरफ से कुछ डाल रहे हो. Transliteration, what is the need for you to come here at this hour? इसका transliteration कैसे होगा? लगते हैं अभी मैं आपको वही समझा रहा हूँ, लिटरेचर ही बता रहा हूँ मैं, तो I'm just trying to pop up myself to the talk which he is giving here without any this thing. You know, बेटा आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ. What is the need for you to come here at this hour? Very simple, very simple. I'm asking the transliteration. No, exactly. I think everybody will understand if you speak in the language which. अरे यार, what is the need for you to come here at this hour? It's a very simple English. Hey, we should take some more questions also. अरे सर एक मिनट को एक्सप्लेन करने लगी, ये आप ही के बात की है, उसी की बात की है, तो people will more understand what you are trying to say about the language. Is क्या क्यों कब लिए जरूरत घंटा हो जाएगा इसका ट्रांसलिटरेशन. इंटरप्रिटेशन ये होगा कि आपको समय यहाँ आने की क्या जरूरत थी, और इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा, वही बोल रहे हैं. Any question now? Yes, any question in regards to the subject materials? I want to make one correction. It is not that we didn't have the books. Remember, Newton, whatever calculus he did, 400 years before that, the calculus book was available. Means the calculus was there in Kerala. It was being taught, and we have the books. And if you think that such book doesn't exist, you are wrong. Because Vedic mathematics has been written in Sanskrit, and there are many books. We have not been told that there is such a book. I'll give you a concrete example. I was just on Friday, I had a talk at IIT Bombay. So I met this one professor, and he's been translating astronomy texts from Sanskrit and from Malayalam into English. In fact, the book that he just showed me is published by Springer. So really authentic, very high quality work. And all of Kepler's planetary motions are described in the Sanskrit text he's translating. Right? So, lot of these concepts actually went from here and they were taken, like calculus for instance, there is a work by C.K. Raju you can read about the probable transmission of calculus from the Kerala School of Mathematics to Europe. So what happens is the Jesuit priests were here that had been sent to learn the calendar. So when they were learning the calendar, they picked up this mathematics, they took it to Europe, and then all the originals were erased. So हमारे से आया है. In fact, for us to do it in Indian language is much easier because यहाँ से निकले बहुत concepts. Yeah, you answer, sir. Either question, Michael, let other people ask. Question, it is a reflection of Yashiraj's question. His question was how he understands in Marathi Newton's law. That was his question. Now there is something called as Marathi Vishwakosh Nirmiti Mandal, which is a state government initiative, and there is a Marathi Vishwakosh हे संकेतस्थळ आहे. देन इंटरनेटवर आणि तुमच्या मोबाईलवर सुद्धा ॲक्सेसिबल आहे. मराठी विज्ञान परिषद हे जे विज्ञान विषय आहे ते मराठी ट्रान्सलेट करत आहे, आणि ह्या ज्या नोंदी आहेत त्या त्याच्यामध्ये चांगल्या मराठीत उपलब्ध आहेत. सर, मला सांगायला अभिमान वाटतो की वैद्यकीय विषय मराठीत आणण्याकरता ची जी जबाबदारी आहे ती KM चाललेली आहे, आणि मराठी विश्वकोशासाठी आम्ही काम सुरू केलं. I hereby request Professor Dr.M.V.L. to please come on the dais to release this book of Sanu. We will continue with the question answer चलेगा, लेकिन ये किताब को विमोचन है, release of this book by the hand of Dr. Lopa, Madam Lopa and Dr. Milin Nadkarni, and the release of this book. और इसकी भी कहानी है कि यही वाली पुस्तक जो मेरी अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल आज मराठी में आ गई है, तो आपने मराठी में बात की थी, तो ये मराठी में आई, और ये मराठी में आई भी इसीलिए है कि किसी ने वॉलंटियर वर्क से किसी आचार्य, एक जैन आचार्य विद्यासागर जी, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो ये आज ही मराठी में आई है, तो बहुत स्वागत है. आप मराठी के शब्दकोश की भी बात कर रहे थे उसमें, तो आप रिलीज करें, प्लीज योर कैमरा.
और सब लोग एक मराठी की, जो भी मराठी समझता हूँ, मेरे पास सिर्फ मराठी की कॉपीज हैं सिर्फ, तो आप अवश्य मराठी की कॉपी एक लेते हुए जाइए। और जो भी यथासंभव, अगर वैसे मूल उसका लगा हुआ है, लेकिन आप ले जाइए। अगर आपने कुछ डोनेशन कर दिया हो तो कर दिए, लेकिन लोगों जन जन तक ये बात पहुंचे वो महत्वपूर्ण है सबसे, सब लोगों के पास। क्योंकि मराठी में विज्ञान का बहुत पढ़ते रहे हैं हम यहाँ, विज्ञान मराठी में बाकी प्रदेशों में छूट भी गया हो, यहाँ पे पढ़ते रहे, और उसका पुनर्जीवन होना बहुत आवश्यक है। Yeah, your questions please before we conclude. Huh? I don't know the organizers. We have another lecture, sorry. Friends, it was very nice. We can always talk outside, and there are some books. Please everybody take a Marathi book. Thank you very much. God bless us all. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Was indeed riveting talk for Ram Varsi. May I please request Madam Professor and Professor, please to stay. अशोक मराठी पुस्तक आहे.